Hello students. So today I will discuss on the lecture 3 of the pharmaceutical organic chemistry first. The subject code is BP202T. I am Nidhi Srivastav from NIT Pharmacy Institute, Greater Noida. The topic of the lecture is nomenclature of organic compounds. So in my previous lecture we will discuss about the introduction of the organic compounds, the classification organic compounds. Now we will discuss about the nomenclature of organic compounds. So nomenclature of organic compounds, the nomination of the organic compounds, it will be related to the nomination of the organic compound. In there we will give the name of organic compounds in the different ways. So there are two systems of the naming of the organic compounds. One is the Tribal system and the second is the IUPAC system. This is also called IUPAC system. So the Tribal system, it is the old system. It is the old system for give the naming of the organic compounds. When a few organic compounds were known, they were named on the basis of their history or source. This is related to the, this system is related to the different historical source of the organic compound, like formic acid, SCOOH. This is the carboxylic acid. There is the carboxylic functional group is present, and the general name of the common name of the compound is formic acid. This is found in the red ants, like acetic acid, CH3COH. In there also the carboxylic group is present, and this is also called acetic acid, and it is found in acetum vinegar. So these are the compounds, these are the names which is related to the historical source of the organic compound. Okay. So this is the Tribal system. Now the IUPAC system, it is also called International Union of Pure and Applied Chemistry, and according to that we can nominate the organic compounds by the different ways and by the different rule. There are many rules are present for the give the naming of the organic compound by the IUPAC system. क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम ट्राइबल सिस्टम की बात करते हैं तो अब हम हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिस्टोरिकल सोर्स नहीं देख सकते हैं, हमें नहीं मतलब एक जनरल नेम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नहीं, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके डेरिवेटिव्स हैं, तो उनका जनरल नेम याद रखना, कॉमन नेम याद रखना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो हम एक ईजी रूल देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी डिफरेंट कंपाउंड या फिर हम नया कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो उसका नेमिंग करना हमारे लिए एक मतलब इजी हो. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, IUPAC सिस्टम, क्योंकि IUPAC सिस्टम क्या है, इसमें डिफरेंट रूल है, इतने सारे रूल्स हैं कि हम डिफरेंट वेज से नेमिंग दे सकते हैं कंपाउंड को, और ऐसे कंपाउंड को भी जिनको हमने शायद जिनका स्ट्रक्चर हम शायद फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको भी हम नेमिंग दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल. तो ये डिफरेंस है ट्राइबल सिस्टम और IUPAC सिस्टम में. तो IUPAC सिस्टम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द nomination or the nomenclature of the organic compound. By using the system where one can name any complex organic compound easily. The name assigned to an organic compounds on the basis of latest IUPAC rule is known as systematic name, और इसके थ्रू हम एक सिस्टमैटिक नेम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉन्डिंग, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप, उसकी पीरियोडिटी को देख के, फिर उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं कंपाउंड्स में उसको देख के बहुत सारे डिफरेंट रूल होते हैं, और उन रूल्स को बस हमें ध्यान रखना होता है, देखना होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम एक सिस्टमैटिक नेम दे सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को. तो IUPAC सिस्टम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अब
IUPAC सिस्टम के लिए या नॉमेनक्लेचर जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, उनके लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं. सो द IUPAC सिस्टम, IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज द बाय द प्रेफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. ये 4 ऐसे मेन होल मतलब इनको बोलेंगे जो ऐसे पार्ट हैं जिसके थ्रू हम नॉमेनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें प्रेफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये चारों पार्ट्स आते हैं. प्रेफिक्स क्या होते हैं? प्रेफिक्स इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इफ प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. प्रेफिक्स के थ्रू जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जैसे कि आपका कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर कोई हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है विच इज़ यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसकी नेमिंग हम करते हैं और वो कहलाते हैं आपके प्रेफिक्स. तो सब्स्टिट्यूएंट को अगर हमें नेमिंग देनी है, डिनोट करते हैं, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? बाय द प्रेफिक्स. और इसको हम जब नेमिंग देते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं कंपाउंड में, और जब सफिक्स की बात आती है तो उसको हम सबसे एंड में लिखते हैं. उसमें भी 2 टाइप के होते हैं, भी वो हम देखेंगे. तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में जैसे यहाँ पे हम हैलाइड्स देख रहे हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, और इनके जो प्रेफिक्स नेमिंग होती है वो इसी तरह होती है, F का फ्लोरो, C का क्लोरो, Br का ब्रोमो. और इनको हम स्टार्टिंग में ही जब नेमिंग देते हैं कंपाउंड्स को उसी टाइम ही लिखते हैं. और अदर और भी हैं, आयोडाइड, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रो, CS3, मिथाइल, C2H5, इथाइल, C3H7, प्रोपाइल. दीज आर द एल्काइल ग्रुप्स. एल्काइल ग्रुप्स कैसे बनते हैं? जब एल्केन की बात करें तो एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है या रिमूव हो जाता है तो आपका एल्काइल ग्रुप बन जाता है. जैसे मीथेन से CH4 मीथेन है, मीथेन अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है मीथेन का तो मिथाइल, दिस इज मिथाइल. C2H6 इथेन है, C2H5 इथाइल. इसी तरह से प्रोपाइल, C3, मतलब इसी तरह से आपके जैसे जैसे हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कराते जाओगे वैसे वैसे एल्काइल ग्रुप बनते जाएंगे. तो एल्काइल ग्रुप भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही लिए जाते हैं और इनको हम एज अ प्रेफिक्स की तरह ही लिखते हैं. फिर वर्ड रूट. वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन. जितने कार्बन की चेन होगी उसके अकॉर्डिंग हम जब उसको पूरी चेन को सेलेक्ट करेंगे, उसको नंबरिंग देंगे, तो ये हमें वर्ड रूट पूरा देखना होगा. मतलब इसी को हम वर्ड रूट बोलेंगे. मान लीजिए आपके कार्बन की चेन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की चेन है. तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें पूरा लॉन्गेस्ट चेन एक तो हम सेलेक्ट करेंगे. ये आपका कैसे इसको देनी है? अब 7 कार्बन की चेन है तो 7 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? हेप्टा, हेप्टेन. ठीक है, तो ये आपका डिसाइड किसके थ्रू होगा? बाय द वर्ड रूट, क्योंकि वर्ड रूट इंडिकेट करता है नंबर ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन. जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी, मान लो अगर इसमें एक C ऐसा है, एक कार्बन ऐसा है जो कोई एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह हो रहा है यूज़, या फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो रहा है, तो वो हम पॉसिबिलिटी जब हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे. तो वर्ड रूट क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ द कॉमन चेन, number of the carbon atom which is present in the longest possible chain. Now the suffix is divided into 2 parts, primary suffix and secondary suffix. Primary suffix, it denote the nature of the carbon to carbon bond in the organic compound. प्राइमरी सफिक्स के अकॉर्डिंग जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है कार्बन और कार्बन के बीच में उसकी बात करते हैं. मान लीजिए सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है
डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सेट डिसाइड करते हैं प्राइमरी सफिक्स। कैसे? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या नाम देना है? इन। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन। इस तरह से नेमिंग देते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें पोजीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो पूरा एक ही मतलब पोजीशन होती है। डबल बॉन्ड क्या होगा? वो एक या दो ही प्रेजेंट होंगे कंपाउंड में, मतलब जितनी लॉन्गेस्ट चेन है उसमें सारे तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकते, वैलेंसी नहीं मेंटेन हो पाएगी, तो दो या तीन या चार, मतलब जैसे भी आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ज़्यादातर दो ही प्रेजेंट होते हैं। एक वैसे होता है दो, कॉन्जुगेटेड डाइन होते हैं तो दो होता है, और वैसा है तो एक। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है? दो प्रेजेंट है तो दोनों कौन कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है? एक प्रेजेंट है तो वो कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है? तो वो पोजीशन हमें लिख के उसका नेमिंग देनी होती है। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्राइमरी सफिक्स। नाउ द सेकेंडरी सफिक्स, इट रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप if present in an organic molecule and is attached to the primary suffix while writing the IUPAC name. तो according to the secondary suffix में क्या होता है कि इसमें हम functional group देखते हैं। functional group कौन सा present है, तो इसको हम लिखते हैं जस्ट सबसे बाद में। सबसे पहले हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, फिर लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स को। प्राइमरी सफिक्स में जैसे हमने बॉन्ड देख लिया कौन सा प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग एन, इन, आइन डिसाइड कर दिया। उसके आगे जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ओइक एसिड प्रेजेंट है तो ओइक एसिड, अल्कोहल प्रेजेंट है तो ऑल, एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो अल, कीटोन प्रेजेंट है तो ओन। सो दिस इज द सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो प्राइमरी सफिक्स के बाद ही हम सेकेंडरी सफिक्स को लिखते हैं, और ये तब लिखते हैं जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नहीं प्रेजेंट होता है तो प्राइमरी सफिक्स तक ही आपके कंपाउंड की नेमिंग हो जाती है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तब हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। सो दीज आर द 4 पार्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन द नॉमेनक्लेचर, इन द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड: प्रीफिक्स, वर्ड रूट, suffix and primary suffix and the secondary suffix. ओके, कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, तो हम चारों पार्ट को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। ये आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6 कार्बन के चेन की ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें मॉलिक्यूल है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब हमें इन्हीं सबको देखना है। तो सबसे पहले अभी तो जब हम IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे तो सारे रूल पढ़ेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर देती हूँ। तो जैसे यहाँ पर है, पहले हम देखेंगे कितने कार्बन की चेन है, क्योंकि हमें वर्ड रूट भी देखना है। तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, तो मतलब 6 कार्बन की है, तो क्या मतलब होगा? हेक्सेन। अब हेक्सेन तो हमने ऐसे बोल दिया अभी क्योंकि हमने सिर्फ चेन की बात की, अभी हमने उसमें ये नहीं देखा है कि कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हेक्स आ जाएगा, वर्ड रूट ये डिसाइड हो गया। क्योंकि सिंगल चेन है, मल्टीपल है नहीं, तो हम लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट चेन को ही सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि जब हम नेमिंग देते हैं तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, उसके बाद बॉन्डिंग देखते हैं, और फिर सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इधर OH, तो इट मीन्स हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, कंपाउंड की फर्स्ट पोजीशन इधर देनी, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन में आ रहा है। अगर हम इधर से नंबरिंग देखते हैं तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे अगर आता है, तो 5 पोजीशन पे आने का मतलब है मतलब बहुत पीछे जाके आएगा, तो हमें स्टार्टिंग में ही प्रायोरिटी देनी होगी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को। तो नंबरिंग हमने स्टार्ट की 1 2, ओके, तो सेकेंड पोजीशन पे आ गया फंक्शनल ग्रुप, 3 4, थर्ड पोजीशन पे आ गया डबल बॉन्ड, 5 6 पोजीशन पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। सब्स्टिट्यूएंट जो है मिथाइल के फॉर्म में इट विल बी प्रीफिक्स, एंड
वर्ल्ड रूट जो पूरी पेरेंट कार्बन की चेन है, इट विल बी वर्ल्ड रूट, प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स हो गया सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को तो हमें नेमिंग देनी नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम डबल बॉन्ड को ही नेमिंग देंगे और नंबरिंग भी उसकी ही रखेंगे। तो डबल बॉन्ड ये प्रेजेंट है थर्ड पोजीशन पे, दिस इज प्राइमरी सफिक्स। सो द IUPAC नेम विल बी 5 मिथाइल, क्योंकि प्रीफिक्स क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तो 5 मिथाइल। कोई पोजीशन हमें सबकी, क्योंकि IUPAC नेम में यही चीज़ मैटर करती है, एक सिस्टमेटिक नेम देते हैं और हर चीज़ की पोजीशन लिखते हैं। तो 5th पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है, 5 मिथाइल, ये हमने प्रीफिक्स की नंबरिंग दे दी, नेमिंग दे दी। हेक्स ये वर्ल्ड रूट हो गया। 3 इन, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और सेकेंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है जो है एल्कोहलिक, तो ऑल आ गया, तो इसका नेम क्या हो गया, 5 मिथाइल हेक्स 3 इन 2 ऑल। ठीक है, तो प्रीफिक्स, वर्ल्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, इन सब को मिला के एक IUPAC नॉमेनक्लेचर कंपाउंड का फॉर्म हो गया। Such types of compounds formed by the combination of hydrogen and carbon are known as hydrocarbon। जो भी कंपाउंड है ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिल रहा है तो इनको हम हाइड्रोकार्बन भी बोलेंगे। The 4 major categories of organic compound that are present in all the living things are carbohydrate, lipid, protein and nucleic acid। Now the common classes of the organic compounds are alkanes, alkene and alkynes। ठीक, सबसे मेन बेसिक क्लासेस हैं आपकी एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन इंडिकेट द सिंगल बॉन्ड, एल्कीन इंडिकेट द डबल बॉन्ड एंड एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट इज एरीन्स। एरीन्स क्या हैं आपके, एरोमेटिक रिंग जिसमें प्रेजेंट होती हैं, मतलब कंपाउंड आपके ऑर्गेनिक हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। फिर उसके बाद आते हैं आपके एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल ईथर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, these are also the functional group। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें कि आपके आते हैं ईस्टर अमाइड, फिर अमाइंस, फिर कॉन्सेप्चुअल, फिर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप्स क्रिएट द फंक्शन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, फंक्शंस क्रिएट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट नेमिंग देते हैं। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स इन द फंक्शनल ग्रुप केस सच एज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप and the aldehyde group and different other functional group. These are the classes functional group. तो these are the classes of the functional group, जैसे कि अमाइड है, एल्केनामाइड, क्योंकि एल्केन के साथ ही ऐड होंगे तो एल्केनामाइड। अब एन है या ईन है या आइन है ये तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, लेकिन जब हम नेमिंग देते हैं तो एल्केन प्लस अमाइड, एल्केन प्लस एल्कोहल, इस तरह से नेमिंग देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप अमाइड, एल्कोहल, एल्कोहल्स, हाइड्रोक्सी। अगर हम इसके एल्कोहल के प्रीफिक्स की बात करें तो इट विल बी हाइड्रोक्सी, अमाइंस, अमीनो, एसिटाइलिन, एल्काइंस, आइसोसाइनाइड, एनसी, साइनाइड होता तो CN होता, ओलेफिन्स, एल्केन्स, कीटोन्स, कार्बोनिल ग्रुप में आता है, नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो एल्केन्स, नाइट्रो एसिड एनहाइड्राइड्स, एल्केनोइक एनहाइड्राइड्स के नाम से नेमिंग देते हैं, एल्डिहाइड्स, एल्केनल्स, एसिड हेलाइड्स, एल्केनोइल हेलाइड्स, ईथर्स, एल्कॉक्सी एल्केन्स। ठीक है, फिर इधर ईस्टर्स, एल्काइल एल्केनोइड्स, एल्काइल हेलाइड्स, साइनाइड्स, नाइट्राइल जो कि आपका कहलाता है एल्केन नाइट्राइल या साइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केनोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिल। सो these are the functional group which is used in create the function of the organic compound। फिर से एक बार हम IUPAC सिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं। IUPAC सिस्टम 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है, क्योंकि हमने IUPAC सिस्टम को इसलिए डिस्कस किया क्योंकि IUPAC सिस्टम ही मेन सिस्टमेटिक वे है जिसके अकॉर्डिंग हम
जिसके अकॉर्डिंग हम IUPAC नेमिंग देके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। तो जिसमें 3 चीज़ें मेन हैं, रूट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जिसमें जो स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिसको हम सबसे पहले देते हैं नेमिंग में बाय द नंबरिंग के साथ, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था एल्काइल जितने होते हैं वो आपके प्रीफिक्स में आते हैं, हैलाइड्स जितने होते हैं वो आपके प्रीफिक्स में आते हैं। उसके अलावा आपके नाइट्राइल साइनो ग्रुप भी कभी कभी एज अ प्रीफिक्स ले लिया जाता है, मतलब वो तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है आपका पहले मैं एक चीज़ ये भी डिस्कस कर लेती हूँ। अभी तो ये हमने जो फंक्शनल ग्रुप देखे हैं ये डिफरेंट है और डिफरेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन अगर हम पीरियोरिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं, जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें हम एक बार पीरियोरिटी के अकॉर्डिंग देख लेंगे फंक्शनल ग्रुप को, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे पहले हमें उसको प्रायर कंडीशन सबसे फर्स्टली हम उसको प्रेफरेंस देते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके आगे जितने डिफरेंट आते जाते हैं, इस तरह से टेबल होती है जिसके अकॉर्डिंग हम एक प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड, मान लीजिए क्या होता है कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। अब हमें किसको नेमिंग पहले देनी है, किसको हमें बाद में देनी है, किसको हमें ऐसा प्रीफिक्स रखना है, किसको ऐसा हमें सेकेंडरी सफिक्स रखना है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, उसके लिए हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमें प्रायोरिटी में रखना है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी वाली टेबल होती है जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप ये है, मतलब कौन सा हम पहले प्रायोरिटी में रखेंगे, कौन सा बाद में रखेंगे। तो इस तरह से हम पूरा देख के उसके बाद IUPAC नेमिंग देते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो सबको ही पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही जो होगा वो लॉन्गेस्ट चेन के साथ जाएगा, बाकी अदर फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स की तरह लिए जाएंगे, ठीक है। तो प्रीफिक्स में जो भी आपके एल्काइल्स आते हैं और जो आपके हैलाइड्स होते हैं, उसके अलावा अगर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें जो सेकेंडरी वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, सेकेंड पीरियोरिटी वाला, उसको एज अ प्रीफिक्स ले लेते हैं और नंबरिंग के साथ नेमिंग दे देते हैं, ठीक है। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड जिसमें हम पूरा जो कार्बन की चेन होती है जो उसको सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका डिसाइड करते हैं कि हेक्सेन है कि प्रोपेन है कि पेंटेन है, चेन पूरी डिसाइड करते हैं, वो आपका रूट वर्ड में आ जाता है। सफिक्स में सफिक्स 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, जो भी आपके नेचर ऑफ द कार्बन एटम, मतलब सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है वो देखते हैं। अगर सैचुरेटेड है तो हमें सीधे एल्केन करके उसकी नेमिंग दे देनी होती है। अगर अनसैचुरेटेड है तो हमें डिफरेंट एल्कीन और एल्काइन टाइप, जैसे मान लो एल्कीन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस टाइप से नेमिंग देनी होती है, उसकी पोजीशन लिख के बॉन्ड की, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें भी हमें ऐसे ही देना होता है। तो दिस इज़ द प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इसमें हमें फंक्शनल ग्रुप देखना होता है और फंक्शनल ग्रुप को हमें लास्ट में प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखना होता है विद नेमिंग। अब एक एग्जाम्पल ये है, दिस इज़ द साइक्लोप्रोपेन। ये आपका एक एरोमेटिक IUPAC है जिसमें मतलब नेमिंग है, नॉमेनक्लेचर है, जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपका कंपाउंड है और IUPAC नेम जो इसका है साइक्लो प्लस प्रो प्लस एन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है तो एन होगा। अब साइक्लो इसलिए क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में, तो साइक्लो को एज अ प्रीफिक्स रखा गया है। प्रोप क्या होगा, रूट वर्ड हो जाएगा। ये मतलब ये बताया गया है साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए नॉमेनक्लेचर। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, साइक्लो। सेकेंड उसमें सेकेंडरी सफिक्स तो है ही नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा, और प्राइमरी सफिक्स इसका एन आएगा। एन क्यों आएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, तो ये आपका कंपाउंड के नाम नेमिंग क्या हो जाएगी, साइक्लोप्रोपेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक बार हम स्टार्टिंग से फिर से देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर 2 टाइप से होता है, ट्राइबल सिस्टम और IUPAC सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम में जो कंपाउंड जो नेमिंग आती है आपकी, जो कंपाउंड को बाय द हिस्टोरिकल सोर्स के थ्रू देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग डिसाइड की जाती है, और वो नेमिंग एक परमानेंट मतलब रहती है। वो नेमिंग उसकी
जनरल नेम रहेगा उसका। और जब हम IUPAC सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हम केमिकल नेम देते हैं और डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको नेमिंग देते हैं, जिसे हम सिस्टमैटिक नेमिंग भी बोलते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्राइबल सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम को हम कॉमन सिस्टम भी बोलते हैं और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, दीज आर द कॉमन नेम। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, दीज आर द कॉमन नेम। IUPAC को हम इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग हम सिस्टमैटिक नेम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और इसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे नेमिंग देते हैं कार्बोनिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो देखेंगे। फिर IUPAC देने के लिए हमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है: प्रेफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्रेफिक्स क्या होते हैं? प्रेफिक्स वो होते हैं जो स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, उनको हम प्रेफिक्स बोलते हैं। वर्ड रूट क्या होते हैं? वर्ड रूट जो लॉन्गेस्ट चेन होती है कार्बन की, उसको वर्ड रूट बोलते हैं। और सफिक्स जो एंड में आता है। ओके, थैंक यू।